प्रोड्यूस क्या करेगा, H प्लस आयंस, इज प्रोड्यूस H प्लस आयंस इज नोन एज अरेनियस एसिड, इसको कहेंगे अरेनियस एसिड, है ना। तो अरेनियस एसिड की बात किया तो यहाँ पे HCl लिया, HCl दिस इज रिएक्टेड विद वाटर मॉलिक्यूल, देन it formation of Cl negative and what H3O positive, so this is nothing but hydronium ion, याला म्हणतात हायड्रोनियम आयन असं म्हणतात. So this hydronium ion undergoes this formation of H plus, again this water molecules remain 8, it is nothing but H plus ion. यहाँ पे प्रोटोनियम आयन इसको बोलेंगे, दिस गिव्स द प्रोटोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, इट इज फॉर्मेशन, इट गिव्स हाइड्रोजन आयन प्रोटोनियम आयन, दैट इज नथिंग बट अरेनियस एसिड, इसको कहते हैं अरेनियस एसिड. व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर it produce H plus ions is known as acid, that is areneous acid. So one of the example we will give here the hydrochloric acid. So another one example H2SO4 sulfuric acid. So it is dissolved in water molecule, it goes to the formation of this is the, it is what, it is goes to the formation of what, HSO4 negative plus H3O positive. Again this what, again it goes to the formation of what, H plus ions plus SO4 2 negative. देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन गया है ना, H यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे लॉस हुआ, so that is nothing but SO4 2 negative, एक नेगेटिव था तो यहाँ पे बना 2 negative. It gives the H plus ions, this is nothing but areneous acid H2SO4. Again one of the third example, third reaction we say HNO3 nitric acid. This nitric acid is react with our water molecule again it form, and is go to the formation of NO3 negative plus what, H3O positive. Again this H3O positive undergoes dissociation, then formation of H plus ion and water molecules. Again it gives H plus ions, it gives H plus ions, that is nothing but what. So again it is what, again this is what, dissociation here, dissociation, again formation of H plus and what, one here water molecule, again it gives H plus ions. When dissolved in a water or aqueous condition, it gives H plus ions is known as areneous acid. So another types of the example we will explain, this is what nothing but a carbonic acid. So how the carbonic acid is prepared? We are having this water, that is what, H2CO3. So this is how it is goes toward H2O plus what, CO2. H2O plus CO2, then formation of this is nothing but carbonic acid. Carbonic acid. So this is the carbonic acid. Again it is dissolved in water molecule. Whatever this is dissolved in water molecule, the reaction is that this is क्या करना है, इसको dissolve करना है water में, तो क्या होगा? So it gives what, 2H positive plus what, CO3 2 negative. It means gives what, H plus ions again. This is what, areneous acid. Very very simple. ऐसा केमिकल सब्सटेंस उसको वाटर में डिसॉल्व करो, उसको बोलेंगे अरेनियस एसिड. So this is a simple method to understand here. So what if you are having this water, अब यहाँ पे मैं HCl की बात करूंगा, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है और HNO3 है ना. यहाँ पे हमने क्या कहा कि when chemical substance will dissolve in water or it which is dissolved in aqueous condition, it gives what, H plus ions. तो H plus ion का concentration कभी यहाँ पे ज्यादा होता है, higher, we can say higher concentration. So that what, higher concentration of, एक टर्म मैं यहाँ पे आपको बताने चाह रहा हूँ, higher concentration. When this what HCl, it is dissolved in water molecules, it dissolved in water molecules, it dissolved in water molecules and gives H plus ions, gives H plus ions, gives H plus ion, but it what, high concentration. इसका concentration high होगा, so that is the formation of H positive plus water against Cl negative ions. This water H positive plus Cl negative ion, इसका concentration 90% होगा, इसका concentration 10% होगा.
तब जाके हम यहाँ पे भी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. त्याला काय म्हणतात? स्ट्रॉन्ग एसिड असे म्हणतात. व्हेरी सिंपल. So, but how the dissociation is completely dissociate? Suppose if we are having this hydrochloric acid, it is having the dissociation H plus ions and Cl minus ions in what? In aqueous condition. लेकिन डिसोसिएशन कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली डिसोसिएशन होना चाहिए. कंप्लीटली डिसोसिएशन कभी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. मतलब कंप्लीटली डिसोसिएशन होने के बाद हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, हाई होगा, तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. वेरी सिंपल. अब देखो वीक एसिड किसको कहेंगे? वीक एसिड सपोज कार्बोनिक एसिड H2CO3. Again what you can say what formic acid SCOOH. Again you can say this what acetic acid CH3COH. ये जो एसिड है ये वीक एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. अब ये तीन एग्जांपल है हमारे पास, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड. अब ये कभी हम एक्वस कंडीशन में डिसॉल्व हो गए, लेकिन कैसे हो गए? पार्शियली. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. पार्शियली डिसोसिएटेड. पार्शियली डिसोसिएटेड. ये पार्शियली डिसोसिएट होगा. This acid, a chemical substance which is partially dissociated in aqueous condition and gives lower concentration of H plus ions. देखो lower concentration of H plus ion होगा by how? Partially dissociation. तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. यहाँ पे होगा HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. यहाँ पे होगा HCOO नेगेटिव प्लस व्हाट? H पॉजिटिव. मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? लोअर कंसंट्रेशन होगा. तो इसी को कहते हैं वीक एसिड. याला काय म्हणतात? वीक एसिड असे म्हणतात. ओके, तो ये टर्म्स अरेनियस कंसेप्ट से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. So that is a lower concentration, higher concentration. Possibility this is what partially dissociate and completely dissociate. Partially dissociate होना, completely dissociate होना, इस टर्म से अपन यहाँ पे, और concentration का जो proportion है, high concentration H plus ion form होना strong acid, low concentration H plus ion form होना weak acid. Okay, so these are the can explain strong acid as well as weak acid. तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है दैट इज द अरेनियस. व्हाट इज दैट? अरेनियस व्हाट? अरेनियस बेस है ना. बेस की तरफ जाएंगे अपन. अरेनियस बेस. सो व्हाट इज द कंसेप्ट इज देयर? व्हेरी सिंपल. सोडियम हायड्रॉक्साइड एक एग्जांपल घेतलं. दुसरं एग्जांपल लिथियम हायड्रॉक्साइड. याला काय केलं? पाण्यामध्ये डिसॉल्व केलं. पाण्यामध्ये डिसॉल्व केल्यानंतर काय झालं? दिस इज व्हाट इट गिव्ह द Li पॉजिटिव प्लस व्हाट OH नेगेटिव. यहाँ पे OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी Na पॉजिटिव एंड हियर व्हाट Li पॉजिटिव. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव. तो ये जो आयन्स फॉर्मेशन हुए इसको क्या कहते हैं? इसको हायड्रॉक्साइड आयन असे म्हणतात. काय म्हणतात त्याला? हायड्रॉक्साइड आयन असे म्हणतात. हाउ it defined? Where the chemical substance which is dissolved in water molecules and gives hydroxide ion is known as areneous base. For example, lithium hydroxide, sodium hydroxide, calcium hydroxide. Such types of the example is known as what? Areneous base. अब आगे जाएंगे अपन. Though that is one of the method is what? Bronsted. What is the term? Bronsted acid and base. The concept is the Bronsted acid and base. Very simple. As the second types of the concept is the scientist J.N. Bronsted. J.N. Bronsted and what? Lowry. So M. Lowry. कैसे दिस Lowry? Lowry नहीं सुना ना भाई? नाम साइंटिस्ट का है Lowry. So that is the Bronsted and Lowry concept. Acid and base की बात कर रहे हैं. सिंपल डेफिनेशन है ऐसा केमिकल सब्सटेंस कि वो प्रोटॉन डोनर करेगा. प्रोटॉन डोनर. आई एम राइटिंग हियर a chemical substance which donate the proton. डेफिनेशन तर लिहू आपण पहिली.
chemical substance which donate or donate a proton donor कहो, क्या कहो, प्रोटॉन डोनर, त्याला काय म्हणतात, प्रोटॉन डोनरला म्हणतात ब्राउन्स्टेड ऍसिड, काय म्हणतात, ब्राउन्स्टेड ऍसिड. आणि ब्राउन्स्टेड बेसला काय म्हणणार मग, बीबीला काय म्हणणार, असा केमिकल सबस्टन्स की तो काय करतो, प्रोटॉन. व्हाट इज दॅट, like I said, this is nothing but what, a proton acceptor. Very simple. Proton donor and proton acceptor. Proton donor म्हणजे काय, ब्राउन्स्टेड ऍसिड. प्रोटॉन acceptor म्हणजे काय, ब्राउन्स्टेड बेस. व्हेरी सिंपल. तर आपण इथे एक दोन एक्झाम्पल बघू. बघा काय करायचं, HCl घ्यायचा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस, है ना, तो इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर मॉलिक्यूल में. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, Cl नेगेटिव और यहाँ पे H3O पॉजिटिव, है ना, ऐसा फॉर्म किया था. अब देखो ये जो एसिड है ना, ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको कहते हैं. अब यहाँ पे ये प्रोटॉन इसको डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन ले रहा है ना, मतलब हम इसको ऐसे बताएंगे, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऑप्शन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बनेगा H3O. अब यहाँ पे हम इसका डिसोसिएशन करेंगे तो H प्लस और क्या मिलेगा, OH माइनस, सॉरी यहाँ पे H2O. तो देखो यहाँ पे हमारा ये जो मिला, ये कौन मिला, प्रोटॉन मिला, है ना, प्रोटॉन. सो हाइड्रोजन आयन, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन. इथं आपल्याला काय भेटला, हाइड्रोजन आयन भेटला. So we will get the hydrogen ion from these types of the reaction. मतलब हाइड्रोजन आयन मिलना ये किसकी, ये खासियत अरेनियस एसिड की है ना, अरेनियस एसिडला आपण म्हटलं होतं, है ना. पण इथं काय ऍसिड आहे, ऍसिड हा वॉटर मॉलिक्यूल सोबत ट्रीट केला, तर या वॉटरने इथं काय केलं, प्रोटॉन एक्सेप्ट केला, है ना. मग हा इथं प्रोटॉन डोनर कौन है, हा, इसने क्या किया, इसको प्रोटॉन डोनेट किया, तो ये कौन हुआ, ये प्रोटॉन डोनर हुआ, है ना, ये प्रोटॉन डोनर हुआ. प्रोटॉन डोनर कोण झाला, HCl हा इथं प्रोटॉन डोनर झाला, म्हणजे हा काय झाला, अकॉर्डिंग टू व्हॉट, इट इज अ ब्राउन्स्टेड ऍसिड, हा झाला ब्राउन्स्टेड ऍसिड. परंतु कन्सेप्ट अशी आहे की जर हा वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये डिसॉल्व केला तर H+ आयन डोनेट, इट गिव्स द H+ आयन्स और इट प्रोड्यूस द H+ आयन. तर या कन्सेप्टला आपण काय म्हटलं, या कन्सेप्टला आपण अरेनियस ऍसिड म्हटलं होतं. मग आपण इथे एक स्टेटमेंट लिहू शकतो, अरेनियस ऍसिड, है ना, अरेनियस, एवढी EVERY, एवढी अरेनियस acids are always म्हणू शकतो आपण, always a ब्राउन्स्टेड ऍसिड. व्हेरी इम्पॉर्टंट. काय म्हटलं मी, एवढी अरेनियस ऍसिड आर ब्राउन्स्टेड ऍसिड. प्रत्येक अरेनियस ऍसिड हा, ईच आणि एवढी अरेनियस ऍसिड हा ब्राउन्स्टेड ऍसिड असतो. इथं आपण प्रूव्ह केलं. जसं की इथं HCl घेतला, सेम एक्झाम्पल आपण H2O सोबत घेऊ शकतो, है ना. सो दैट H2O सोबत इट इज रिएक्टेड विथ व्हाट, again we can take this what HCl, hydrochloric acid, is reacted in ammonia molecule. So what happen here, it gives the proton because of the lone pair of electrons. यहाँ पे दूसरा रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे Cl नेगेटिव फॉर्मेशन होगा, NH4 पॉजिटिव मिलेगा, प्रोटॉन इसने इसको डोनेट किया, तो ये हुआ अरेनियस एसिड और ये हुआ अरेनियस बेस, ये हुआ अरेनियस बेस. वेरी सिंपल. तो यहाँ पे हम अमोनिया के साथ फिर वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे. देखो अमोनिया मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं. तीसरी रिएक्शन देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O, है ना, यहाँ पे अमोनिया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमने के बाद से प्रोटॉन इसे एक्सेप्ट करेगा, ये बनेगा ये कौन बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस H3O, नहीं, OH नेगेटिव, कौन मिलेगा, OH नेगेटिव. सो अमोनिया यहाँ पे ये बेस है, कौन सा, ब्राउन्स्टेड बेस. लेकिन यहाँ पे ये एसिड है, यहाँ पे ये एसिड है, कौन सा एसिड है, नहीं सॉरी, यहाँ पे कौन है, बेस. कौन सा बेस है ये, ब्राउन्स्टेड बेस. तो यहाँ पे ये कौन हुआ, ब्राउन्स्टेड एसिड हुआ. देखो वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज नॉट ओनली एसिड बट आल्सो बेस, मतलब दोनों भी यहाँ पे होता है. इट एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. हियर
इट इज ब्राउन स्टेट बेस, हियर ब्राउन स्टेट एसिड। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, NH4। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं लिखना है, पॉजिटिव चार्ज